ہم سننے بریلی والے ہیں، ہم سننے بریلی والے ہیں، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ لگانے والے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، میرے سلام کا جواب وفادار رسول دے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ریکارڈنگ میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ ایک حدیث کا جو مفہوم ہے وہ مجھے بتانے میں تھوڑی غلطی ہوئی، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کھلکھلا کے زیادہ ہنستا ہے اس کے دل مردہ ہوتے ہیں، اور میری زبان سے نکلا کہ وہ منافق کی علامت ہے۔ تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ویسے بھی یہ میں نے اس دیوبندی کو کہا تھا، اس دیوبندی کو ہم مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو ہم کافر مانتے ہیں، کیونکہ وہ دیوبندیوں کے 4 اکابروں کو مومن مانتا ہے۔ تو میں یہ اپنے بھائیوں کو جو ریکارڈنگ سنیں گے ان کے سامنے میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ چاہتا تو میں اس کو کاٹ دیتا، لیکن میں نے اس کو کاٹا نہیں، کیونکہ اگر غلطی کی ہے تو غلطی پر توبہ لازم ہے، اور میں نے توبہ آپ لوگوں کے سامنے کر لی، رجوع کر لیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ایک دیو کا بندر ہے، یہ حفظ الایمان کی عبارت پہ بات کرنے کے لیے آیا۔ حالانکہ یہ ان کا کفر تو ڈھو نہیں پاتے ہیں، لاکھ کوشش کرتے ہیں، اور جب یہ پھنستے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو بہانہ ان کو چاہیے۔ اب دیکھیں، یہ حفظ الایمان کی عبارت بھی میں نے ٹھیک سے پڑھی، اس کا سوال جو ہے زید کا وہ بھی ٹھیک سے پڑھا، لیکن یہ جان بوجھ کر کہ تو نے سوال غلط پڑھا، تو نے عبارت غلط پڑھی، جان بوجھ کر کے لب بازی کرنا اور بھاگنا، یہ ان کی قسمت میں ہے۔ تو اس ریکارڈنگ کو آپ سنیں اور فیصلہ کریں، کیا میں نے عبارت غلط پڑھی، کیا میں نے سوال غلط پڑھا، ہو بہو وہی عبارت پڑھی جو کتاب میں موجود ہے یا نہیں پڑھی، فیصلہ آپ کریں۔ اور دعا میں یاد رکھیں، اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ میں بعد میں لگاؤں گا، پہلے یہ پہلا پارٹ سنیں آپ، ریکارڈنگ زیادہ لمبی ہو جائے گی تو مزہ نہیں آئے گا۔ اور دعا میں یاد رکھیں، اور اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہاں بھی دیوبندیوں کے گندے عقائد سے آپ اپنے دوست احباب کو بچا سکیں۔ ریکارڈنگ شروع کر لینا حضرت آپ۔ ہاں 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 جی میں ہولڈ کر رہا ہوں۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر۔ ہلو، ہاں ہیلو، بولیے بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کون؟ میں جمشید علی قادری بات کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ مہتاب رضا نہیں کر پائے گا کیا بات؟ کیوں تمہارے رضوان رضا رضوان دیوبندی مجھ سے بات نہیں کر پائے گا کیا؟ تو کر تو رہا تھا کل تم سے، تم فون بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ آپ ان سے بات کریے جو بات کرو، تمہاری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ چلیے کوئی بات نہیں، ان کو نہیں علم ہے تو ہم تو بات کر رہے ہیں آپ سے۔ نہیں تو یہ پھر اتنی ڈینگے کیوں مار رہے ہیں؟ ان سے یہ کہیے کہ یہ کہہ دے کہ جو ہے غفران بھائی ہم تم سے بات نہیں کر پائیں گے، میری اتنی اوقات نہیں ہے، اچھا ایک بات پھر دوسرے سے بات کرائیں۔ چلو ایک بات بتائیے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہیں۔ ابھی آپ سے بات نہیں ہو رہی ہے، مہتاب رضا یہ کہہ دے کہ اس کی اوقات نہیں ہے بات کرنے کی، تو وہ پھر ہم تم سے بات کریں گے۔ تم کون ہو تو بیچ میں آنے والے؟ مہتاب رضا کہہ دے کہ میری اوقات نہیں ہے۔ رک جاؤ، چلو میں کہتا ہوں مہتاب بھائی کو علم نہیں ہے، مہتاب بھائی بات نہیں کرتے۔ نہیں، مہتاب بھائی کہیں میری اوقات تم سے بات کرنے نہیں ہے۔ مہتاب بھائی جی ہاں، ان کو اتنا شعور نہیں ہے کہ اوقات کی بات نہیں ہوتی مہتاب ہے، رضا کو علم بھی کی بات شعور ہوتی نہیں ہے اتنا۔ بھائی۔ اچھا، مہتاب رضا کسی کو لے کر کے آ رہا ہے تو ہم بھی کسی کو لے رہے ہیں فی لائن پہ، اس کی اوقات نہیں ہے کیا بات کرنے کی؟ آپ جھگڑا کرنے آئے ہو، بات کرنے آئے ہو؟ مہتاب رضا تم کو کہے لے کے آئے، جھگڑا کرنے لے کے آئے؟ نہیں، جھگڑ تو آپ رہے ہو۔ ایک منٹ رک جاؤ یار۔ بات ہمیں مہتاب رضا سے کرنی ہے نا، وہ کہہ دے تم اس کی اوقات نہیں ہے بات کرنے کی۔ مہتاب رضا کا علم کم ہے، وہ بات نہیں کر سکتے۔ چلیے، ارے آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ کہہ دے اس کی اوقات نہیں ہے۔ اگر علم کم ہے تو پھر علم کم ہے اتنا کیوں جھگڑا ہوا ہے؟ وہ ہم بتائیں گے نا، وہ ہم بتائیں گے۔ ہم بھی لے رہے لائن پہ، ہم بھی لے رہے لائن پہ۔ تم لائن پہ لوگے تو ہم بھی لیں گے۔ لے لو۔ کس کو لے گا؟ لے لے، علی اصغر کو لے گا، دیوبندی کس کو لے گا؟ لے لے۔ کیا نام ہے اس کا؟ نور احمد۔ نام سنتے ہی جمشید علی قادری کا ان کو بخلاہٹ چڑھ جاتی ہے۔
दरअसल ये हमारे यहाँ का रिजवान देवबंदी है ना, आपसे जानते हैं मालूम ना, है मुझे, आपसे पहले रिजवान बात को हुई बहुत थी। अच्छे से जानता हूँ। वो मुझसे बात नहीं कर पा रहा है तो इनको लाइन पर ले रहा है। अब मैंने हाँ। आपको लाइन पर लिया तो इनकी नानी याद आ गई। देखो नाम सुनते ही इनको नानी याद आ गई। अब ये किसको लेंगे? आरिफुल हक्कानी को लेंगे? किसको इनको लेना है ले लेना। ये वो रिजवान मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं। अब भाई मैं मदरसे में हूँ, अभी मदरसे का इन्हें टाइम टेबल नहीं मालूम है इसका। अरे सीधी सी बात ये है कि हमारे पास इसके बारे में इल्म नहीं है, हमारे बड़े से बात कर लीजिए जिनको नहीं, मैंने इल्म है। कहा था हजरत, ये इतना बड़ा आप क्या छोड़ो बता छोड़ो, रहे उसको भी लाने दो, किसको लेके आ रहा है। हैं। हाँ हेलो जमशेद रजा। हाँ जी बोलिए। चलो बात करो। कौन है? हेलो उमर भाई। जी बताइए। कौन है? हाँ ये जमशेद रजा है लाइन पे। मैं मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर पिछली बार की पिटाई भूल गए लगता है। नाम सुन के मत आया करो यार। चलो बताओ, आलिम हो, मौलवी हो, कौन हो? डरना शुरू कर दिए। तुम्हारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैंने डाली है, मेरी रिकॉर्डिंग डाली है तुमने कहीं? हाँ बिल्कुल डाला। कहाँ डाली है? कौन से चैनल पर डाली है? सुनो सुनो, एक मिनट सुनो, पहले बात सुनो, की बात करो ना। पहले बात सुनो। हाँ। दुनिया देवबंद में मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा जिसने मेरी रिकॉर्डिंग डाली होगी। तुमने कहाँ डाली है बताओ? मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग 2 चैनलों पे डाली है जिसमें तुम्हारी अच्छी खासी ठुकाई। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। मेरा नाम है जमशेद रजा। चलो जो है अभी जो है इल्म वाली बात नहीं हो पा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुनिए। बहुत कह रहे थे इल्म वाली गुफ्तगू अरे करनी है, सुनिए ना भाई, कर रहे हो। सुनिए सुनिए। जमशेद अली कादरी सुन्नी हनफी बरेलवी खुदा की कसम खा के कहता है कि मैं किसी देवबंदी से नहीं डरता, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, ये खुद मेरा फोन काट के भागा हुआ है। ये आया था गैरुल्लाह से मदद मांगने पे मुझसे बात करने, और अधूरी रिकॉर्डिंग छोड़ के भागा है। वो रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे डाली है। कसम खा ले। अल्लाह की कसम सुन, अल्लाह की कसम सुन, अल्लाह की कसम, तूने अपने अकाबिर को मुशरिक साबित करवा के फोन काट के भागा था। रिकॉर्डिंग भेजू? रिकॉर्डिंग भेजू? भागा था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हम दोनों में चले अभी 4 अकाबिर। अल्लाह की लानत। चलो आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। वो रिकॉर्डिंग भेज, वो रिकॉर्डिंग भेज। अरे अब मुद्दे पे आ जा। हाँ चलो मुद्दे पे आ जाते हैं। मैं तू डरा हुआ है मेरे से। अब मुद्दे पे आते हैं। अगर तू डरा हुआ नहीं होता तो देवबंद के 4 अकाबिर काफिर हैं। जमशेद रजा तुझे सब जानते हैं, तेरी हालत 2 मिनट की टन, 2 मिनट की टन, 2 मिनट की टन रखते हैं, 2 मिनट की टन रखते हैं, 2 मिनट की टन रखते हैं। मेरे बीच में ये नहीं बोलेगा, इसके बीच में मैं नहीं बोलूंगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है, अगर किसी ने बदसलूकी की, बदतमीजी की या किसी के अकाबिर के ताल्लुक से बेअदबी की, उसकी शिकस्त हो जाएगी, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त ये है, अगर किसी किताब के बारे में ये बताएगा तो उसका हवाला पेश करेगा, उसका सफ़ा नंबर बताएगा, किताब का नाम बताएगा और इबारत पढ़ के सुनाएगा। तीसरी शर्त। तुम नहीं भेजोगे? अरे तो भाई भेजने की, सुनो सुनो, भेजने की बात नहीं हो रही, क्योंकि जब बात होती है, अरे सुनो सुनो, अरे यार सुन ले भाई, सुन ले। अरे यार क्या, थोड़ा सुनने का मादा रखा करो। यही शर्त मेरे पे लागू होती है। सुनो, जब बात होती है ना तो नेटवर्क काम नहीं करता है, हवाला जाता नहीं है जल्दी से। बस आपको किताब का नाम और सफा नंबर बताना है। अपना बहाना निकाल लिया ये जनाब ने। ये देखिए, आप जब बात करते हैं तो हवाला जाता है। नहीं लागू होगी हमारे ऊपर, खाली लागू। अबे तो मैं तो कह रहा हूँ मेरे पे भी लागू होगी। बहरा है क्या भाई? इसके अपना बहाना निकाल लिया। जो बात लागू होगी, नहीं सुनो, ये बात मैंने बोली कि जो शर्त तुम्हारे पे लागू होगी मेरे पे नहीं होगी। मैंने बोली ये बात, मुझे ही बोला था ना। अबे मैं शर्त, मैंने अभी क्या, मैंने क्या बोला? ये अगर बोलेंगे
तो ये किताब देना पड़ेगा, किताब पढ़ना लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, आमीन बोलो। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, आमीन बोलो। तुमने मुझे ही आमीन। बोला है, आमीन। तुमने अब मुझे सुनो, बोला है। अब सुनो, मैंने ये बोला कि जो हवाला पेश करा जाएगा उसका नाम बताया ऐसा नहीं, जाएगा, मुझे बोला सफा जब नंबर। ये हवाला पेश करेंगे तो ये किताब नाम पढ़ेंगे, जो उसूल तुम्हारे हवाला लिए बनाया ना, पढ़ेंगे, मुझे बोले। सुनो सुनो, जो उसूल तुम्हारे मैंने लिए कहा बनाया। कि भाई हम दोनों की अरे क्या यार, ये होगा, बड़बड़ाएगा, ये होगा। बात नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ जो उसूल तुम्हारे लिए बनाया वही उसूल मेरे पे लागू होता है, ठीक है? बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? बताओ कि तुम बताओगे। मौजू है देवबंद के 4 अकाबिर काफिर हैं, मैं साबित करूंगा। मेरे मौजू से कभी बात करने के राजी नहीं होगा। पिछली बार तो तू मौजू लेके आया था गैरुल्लाह से मदद मांगने पे। पिछली बार तू रिकॉर्डिंग तुझको भेजूं? पिछली बार तू अपना मौजू लेके आया था कि गैरुल्लाह से मदद मांगने पे मुझे बात करनी है। मैंने बोला ठीक है, बात कर। मैं थोड़ी लेके आया था, तूने लेके आया था। और तू लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, आमीन बोल। लानतुल्लाह नहीं होता, लानतुल्लाह ही होता है। अबे लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, आमीन बोल। लानतुल्लाह ही होता है। और लानत अल्लाह भी होता है तो अरबी पढ़ा सुन 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 अरबी ग्रामर सुन 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 लानत अल्लाह भी होता है तो। ग्रामर पढ़ा है। अरे यार भाईजान देखो, ये लबबाजी करेंगे। अरबी ग्रामर पढ़ा है। चुप 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 चुप। पहले क्या मफूल भी बना एक मिनट डायरेक्ट लानत अल्लाह कह रहा है। एक मिनट उससे पहले कोई जुमला होगा, एक मिनट का जुमला होगा तो हाँ, ये देख आगे ना लाइन पर। डायरेक्ट बोलता है मुझा पहले को लानत। अब लाइन पर आ गए। हाँ, ये आगे बड़बड़ाहट में फजूल की बात है। अरबी दादी इसकी इतनी हालत खराब है। बात करेगा या बड़बड़ाएगा? अभी फिलहाल जिसके लिए फोन किया गया उस पर बात करो ना। उसूली बात करो, फजूल बात न करो। जो काम की बात कौन कर रहा है फजूल बात? फजूल बात कौन कर रहा है? हाँ, चलो वही बात करो। चलो 2 मिनट की टर्न होगी। 2 मिनट टाइम देख करके सामने वाले को रोक दिया जाएगा। मेरी तरफ से मेरा हकम ये है, खामोश हो जा। पहले खामोश हो जा, पहले खामोश हो जा, इबारत पेश करो। पहले खामोश हो जा, पहले टाइम खराब मत करो। ये उसूल नहीं, बात बोल रहे हो, उसूल नहीं बनाने देगा। हो गया, तुमने बोल दिया। ये उसूल नहीं बनाने देगा। इनकी मैं कह रहा हूँ बता दिया, कितनी बार बताएगा? 2 मिनट के बीच में अगर बोला तेरी शिकस्त हो जाएगी, या मैं बोला तो मेरी शिकस्त हो जाएगी। 5 बार हो गया, 2 मिनट चिल्ला रहा है, वही बात है। इबारत पेश कर। बदतमीजी पे आ गए। अरे यार, इबारत पेश करने बोला। हाँ चलो, अब सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट मेरा देखो भाईजान, टाइम देख लेना, बीच में नहीं बोलेगा ये, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन इकराम, जैसा कि मसलके बरेलवियत यानी मसलके आला हजरत में देवबंद के 4 अकाबिरों के ऊपर जो कुफ्र का फतवा है, मनशक्का फी कुफ्र ही व अजाब ही फ़कत कफर, जिसमें सबसे पहले आता है रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेटवी, रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेटवी, अशरफ अली थानवी और कासिम नानोतवी। रशीद अहमद गंगोही की पहली किताब जिसका नाम है फतावा रशीदिया, जिसके अंदर वो लिखता है कि अल्लाह झूठ बोलने पे कादिर है, तहत कुदरत किस्बे बारी ताला है, और कुरान का हवाला देता है हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह हर एक चीज़ पर कादिर है। दूसरी इबारत हिफ्जुल ईमान की, कि जिसमें अशरफ अली थानवी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म को जानवर पागल से तशबीह दी, और तशबीह देने के बाद जब इससे सवाल किया गया इन्हीं के इज्तमे में, सहारनपुर के इज्तमे में, जब इनके मुर्तज़ा हसन चांदपुरी ने सवाल किया कि तुमने इस तरीके की कोई इबारत लिखी है, तो वहाँ झूठ बोल देता है, और ये बात बस्तुल बनान में लिखी है। कहता है कि लिखना तो छोड़ो, मेरे तो जहन से भी नहीं गुजरी, क्योंकि वहाँ इज्तिमा था, इज्तिमा में लोग ज़्यादा थे, तो वहाँ झूठ बोल गया ये। और मुर्तज़ा हसन चांदपुरी की किताब, मुर्तज़ा हसन लिखता है कि जिस तरीके से आला हजरत ने इनकी इबारत को समझा, अगर कुफ्र का फतवा ना देते तो खुद काफिर हो जाते। तीसरी किताब तहजीरुन नास, जिसमें इसका अब्बा लिखता है कि बिल फर्ज वादे ज़माना नबी, अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो खातमुन नबी में कोई फ़र्क ना आएगा, और हुजूर को आखिरी नबी मानना आवाम का ख्याल है। चौथी किताब तज़किरतुल रशीद, जिसके अंदर हुजूर के इल्म को जानवर से तशबीह दी गई है। तो इस 4 किताबों की बुनियाद पर मन शक्का फी कुफ्री व अज़ाबी फ़कत कफर का फतवा 250 से ज़ायद उलमा ने लगाया, और इनके कुफ्र में जो शक करे वो भी काफिर है। ये हमारे मसलके आला हजरत का अकीदा है। अब ये इस 4 किताब में से किस किताब का डिफेंस करेंगे ये बताएंगे। वक्त हो गया, वक्त हो गया।
देखिए जनाब, इसकी हर वजाहत समझ में आ गई जनाब की। ये क्या किताब की बात कर रहे हैं, किसी एक मुद्दे पे आई नहीं रहे, जबकि इनको एक चीज पर एतराज करना चाहिए था। और इन्होंने कई झूठ बोले हैं, कई मिक्स करके झूठ बोला है। पहला झूठ ये है कि ये कह रहा फतावा रशीदिया में लिखा है कि अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है। ये इबारत ये भेज कर ये लफ्ज दिखा दे। और आखिर में ये कहा है कि फतावा रशीदिया में लिखा है कि अल्लाह के रसूल का जो इल्म है जानवरों पागलों का है, तो फतावा रशीदिया में कहाँ लिखा है ये जनाब दिखा दें। इनकी हड़बड़ाहट यहीं पे समझ में आती है कि इनको इबारत भी नहीं समझ में आ रही है, किताब का नाम भी लेना नहीं आ रहा है। और एक अल्फाज इन्होंने कहा इस समय ये कौन सा अल्फाज है इस समय बहु, इस समय में उन्होंने बोला था। मैं इनसे कहता हूँ, इन्होंने जो झूठ बोला है कि फतावा रशीदिया में लिखा है कि अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है, और फतावा रशीदिया में ये भी लिखा है कि अल्लाह का जो इल्म है वो जानवरों पागलों जैसा है। ये दोनों चीजें ये पहले उस स्कैन भेजें। इनका वसूल है कि ये स्कैन भेजेंगे, फिर उसके बाद इबारत पढ़ेंगे। तो आप जनाब स्कैन भेजें और इबारत पढ़ें। चलिए टाइम हो गया। सामिन इकराम देख लीजिए, इसको कहते हैं मारे घुटना फूटे सर। मैंने पहली किताब फतावा रशीदिया का हवाला दिया, दूसरा हिफ्जुल ईमान का दिया। इनके कान में क्या है अल्लाह जाने, कान में तेल डालते हैं नहीं डालते हैं अल्लाह जाने, कौन सा सुर फूका इनके देवबंद के आलिम ने जो इनको सुनाई नहीं देता है। मैंने दूसरी किताब का नाम हिफ्जुल ईमान लिया, जिसके सफ़ा नंबर 15 पे लिखा है कि किसी ने इससे सवाल किया कि क्या अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब है, तो जवाब देता है आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना बकौले ज़ैद दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल, और अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस। ऐसा इल्म तो जानवर पागल मजनू हैवानात को हासिल है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। दूसरी इबारत फतावा रशीदिया में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत में क़िज़्ब दाखिल है। क्या लिखता है? तहते कुदरत क़िज़्ब बारी ताला है, सफ़ा नंबर 48। ठीक है, फतावा रशीदिया। हवाला गलत साबित करने वाले को 1 लाख का इनाम, और अगर मैं हवाला गलत साबित करूं तो अल्लाह जहन्नम के निचले तबके में मुझको डाले, नहीं तो इसको डाले। आमीन। चले आगे। तीसरी, अब देखिए इसने दोनों किताबों के नाम गलत बताए। मैंने फतावा रशीदिया का नाम लिया था और हिफ्जुल ईमान का नाम लिया था। ये इतना पागल हो गया, बौखला गया, इसको किताब का नाम ही याद नहीं। और दोनों किताब के हवाले मैंने दे दिए, सफा बता दिया, और अल्लाह की कसम खा के लानत भी भेज दी। ठीक है, और ये कहता है इज्तिमा। अबे तो जाहिल, इज्तिमा को इज्तिमा ना कहूँ तो क्या कहूँ? सहारनपुर में इज्तिमा होता है 15 दिन का, तो उसको क्या बोलते हो? हम तो उसको नौटंकी कहते हैं, क्योंकि वो कुरान हदीस से साबित ही नहीं है। तुम ऐसे ही हंसते रहो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो खिलखिला के बार बार हंसता है वो मुनाफिक की अलामत है, ईमान कमजोर हो जाता है। चलो मैं यहीं पे तुम्हें टाइम देता हूँ। इन 4 किताबों में से तुम किस पर बात करोगे? तुम पर छोड़ा मैंने, और ये पहली टर्न पे भी मैंने बोला था कि इन 4 किताबों में तुम किस पर बात करना चाहोगे, वो तुम्हें इख्तियार दिया। किताब का नाम, सफा नंबर मैंने बता दिया। ये देखो, ये जनाब इतना बौखलाया है कि अभी तेरा टाइम हो गया, अभी तेरा टाइम हो गया, इन्होंने अभी तेरा टाइम हो गया। मैंने बीच वाले हकम से बोला है, तुम कौन हो बोलने वाले? मैंने बीच वाले हकम से बोला है, हकम तय करेगा ना। तुम्हारा हकम कहाँ गया? ये तो तुम्ही ने कहा है ना, तो मैं अपने हकम, अरे रुको, मैं अपने हकम से मुखातिब हूँ। सुनो यार, संजीदगी से क्या बात करो, तस्लीम कर लिया। अरे अभी तो मैं इनके परखच्चे उड़ाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? सुनो 1 मिनट भाईजान, मेरे अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, खामोश हो जा भाईजान। हो गया 49 से। अबे रुक जा भाई, रुक जा। अरे रुक। हेलो भाईजान, भाईजान सुनिए। हेलो, हाँ हेलो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अबे सुनो यार, फजूल की बात करके वक्त जाया कर देते हैं मर्दूद कहीं के। चलो ये हदीस बतावे कि कौन सी हदीस में ये लिखा है। ये सरासर अल्लाह के रसूल का झूठ बोला है। दूसरा झूठ इन्होंने खुद कबूल किया है। पहली ऑडियो में इन्होंने कहा कि फतावा रशीदिया में लिखा है कि अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है। जब मैंने इनसे हवाला मांगा
तब इन्होंने देखो अपने अल्फाज बदल दिए हैं कि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, कि अल्लाह कीज में बारी ताला पे कहा दे। तो इन्होंने देखो कई झूठ बोले हैं, ला और हौल इन्होंने वला अभी कुव्वत एक इल्ला हवाला बिल्लाहिल नहीं दिया है उस पर। पहली बात है ये खुद घबराया हुआ है। इनको मैंने कहा कि पहले तुम कोई मौजू बताओगे या मैं बताऊं, तो ये बोले कि नहीं ये बताएंगे। तो ये चार चीजों पे लेके आ रहे हैं कि किसी एक चीज पर ये टिक के बात नहीं कर रहे कि इस चीज पर इनको एतराज है। मैंने कहा भाई तुमको किस चीज पर एतराज है, तो पहले एक चीज किताब पर एतराज करते, उसका जवाब लेते, जब उस पर बात खत्म हो जाती है तो दूसरी किताब पे आते। मगर इन जनाब की घबराहट समझ में आ रही है, कभी कुछ भी बात बोलते हैं और इज्तिमा का नहीं कर रहे हैं, इनकी आइडिया सुन लेना, बोलते हैं इज्तिमा हुआ है। और आखिर में इन्होंने कहा है कि फतावा रसीदिया में लिखा है कि अल्लाह के रसूल का जो जैसा इल्म है वैसे जानवरों पागलों का है, कोई भी आइडिया इनसे सुन सकता है। इन्होंने ये झूठ बोला है। और चलो हो गया, इसका टाइम हो गया, वो चुप कराओ, सुन सकता है। हो गया भाई, टाइम हो गया, टाइम हो गया। अबे 10 सेकंड ज्यादा हो गया, मेरे टाइम पे 10 सेकंड ज्यादा हो गया, खामोश हो जाओ। 53 10 सेकंड ज्यादा हो गया। 53 पे शुरू किया, चलो ले 1 मिनट और ले लो, 53 पे शुरू 1 मिनट और ले लो भाई। बीच में जो हकम हो क्या कर रहे हो, बीच में जो हकम हो क्या कर रहे हो भाई? इनका वक्त खत्म हो गया, इनका वक्त खत्म हो गया। तुम्हें बोला नहीं जाता बीच में, हकम हो किस लिए हो? मेरे साथ बोलते रहे हो, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। चलो 1 मिनट और दे दो इसको, बोलो। चलो एक इबारत पर इतराज पेश करो, एक पे चलो। सामिन इकराम, हमारा एक शेर है कि ना ये तलवार उठेगी ना ये खंजर तुमसे, क्योंकि बाजू मेरे आजमाए हुए। सामिन इकराम देखिए, पहली टर्न में मैंने ये कहा फतावा रशीदिया और हिफ्जुल ईमान, कोई भी इस रिकॉर्डिंग को सुन ले, इतना बड़ा झूठा कज़्ज़ाब आदमी है, लानत अल्लाह अल काज़िमीन, उस पर अल्लाह की लानत हो। चलिए आगे चलिए। दूसरी चीज ये है कि मैंने इसको इख्तियार दिया कि 4 किताबों में इसको किस पे महारत हासिल है, ये मुझसे बात करे। अब ये भाग रहा है, मैं नहीं भाग रहा हूँ, मैंने तो इसको इख्तियार दिया। भाईजान मैंने इसको इख्तियार दिया या नहीं दिया? हाँ बिल्कुल। हाँ, पहली टर्न में ही मैंने इसको इख्तियार दे दिया था कि 4 किताब में तेरे को किस पे महारत हासिल है, तो उस पे मुझसे बात कर। चल, मेरे से तूने पूछा कि तू किस पे बात करना चाहता है, तो मैं तेरे से बताता हूँ, मैं तेरे से बात करता हूँ। चल आजा, हिफ्जुल ईमान की इबारत पे बात करते हैं, सफ़ा नंबर 15। और तूने कहा कि इज्तमा और इस्तिमा, ठीक है, जबकि मैंने कहा सहारनपुर तेरे बस्तुल बनान किताब सफ़ा नंबर 55 पे ये बात लिखी हुई है कि तेरे मुर्तज़ा हसन चांदपुरी ने सवाल किया अशरफ अली थानवी से कि इस तरीके की इबारत जो तुम पे कुफ्र का फतवा लगा है तुमने लिखी है, तो वो कहता है लिखनी तो छोड़ो, मेरे तो जहन से भी नहीं उतरी। तो मुर्तज़ा हसन चांदपुरी लिखता है कि जिस तरीके से आला हजरत ने इनकी इबारतों को समझ के कुफ्र का फतवा दिया, वो ना लगाते तो खुद काफिर हो जाते। और यही बात अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब मलफूजात हकीमुल उम्मत में लिखी है। तीसरी चीज, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब मैं, इसने मुझे इख्तियार दिया, मैं हिफ्जुल ईमान की इबारत पे इससे बात करता हूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ। टाइम आपका हो गया, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। अभी 1 मिनट हुआ है, 1 मिनट 20। मेरे टाइम पे बोलते हो, अपने टाइम पे भी। ये देखिए सामिन इकराम खलते मवज करना शुरू कर दिया इसने, खलते मवज करना शुरू कर दिया। जब मेरा हकम बीच में मौजूद है, 2 मिनट होते ही वो चुप कराएगा। अपने 1 मिनट, चलो 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 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। तुम्हारा हकम कहाँ है? तुम्हारा हकम खामोश क्यों है? तुम्हारा हकम खामोश क्यों है? जब वक्त होगा जब तो बोलेंगे, रुको। हाँ तो इनको चुप कराओ ना। मेरा वक्त नहीं हुआ तो मेरे वक्त में क्यों बोल रहे हैं? जब मेरा वक्त नहीं हुआ, तो बीच में क्यों बोल रहे हैं? 54 पे तुम बोले, 56 पे हो गया, अभी अच्छा एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, अल्लाह की लानत हो उस पर, अल्लाह की लानत हो उस पर जो 2 मिनट से पहले जिसने मुझे रोका। चलो चलो ठीक है ठीक है, जिसने मुझे 2 मिनट पहले रोका, अल्लाह की लानत हो उस पर, बेशुमार लानत हो। आमीन सुम आमीन। लानत हो गई है। चलो अब वो तुम्हारा जो हकम है, 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारा जो हकम है उसको सामने लाओ। हेलो भाई,
हेलो अरे तुम्हारे बस की नूर बात अहमद, नहीं है, जनता ओ नूर अहमद, खिचड़ी का है बना रहे हैं, जब एक इबादत पेश करो नूर अहमद, ए नूर अहमद, बीच में बोल रहे हो, ओ नूर अहमद, बाहर नहीं कर पा रहे, डर रहे हो तुम खुद, डर रहे हो। नूर अहमद, ओ नूर अहमद, खामोश रहते हैं, नूर अहमद, शुरू होता हूँ नूर अहमद, कहाँ भाग के भाई, नूर अहमद, अरे खामोशी से बात करो ना, नूर अहमद, ओ नूर अहमद, मेरी बात एक मिनट चुप रहो, चुप, एक मिनट चुप। नूर अहमद, इनका 2 मिनट का टाइम होगा तो तुम इसको रोकोगे, ये नहीं बोलेगा, और मेरा टाइम होगा तो मेरा हकम रोकेगा। अगर दोनों में से कोई बोला उसकी शिकस्त हो जाएगी। नूर अहमद, खिचड़ा मैदा बना दे, चुपे बात करो खामोशी से। अरे तो जाहिल आदमी इसको समझाना, 2 मिनट से पहले बोलना बंद करने कर लगता है। ये देखो, अरे तुम ही बात करो, बात करने, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रजा भाई, रजा साहब खामोश रजा भाई, इसके पहले हकम से बात करिए, इसको खामोश करिए, इसके हकम से बात करिए आप। नूर अहमद, तुम यार इतना डरते क्यों हो जनाब, क्यों नूर डरते? अहमद कहाँ हो? बोलोगे कुछ? हेलो जब इसका 2 मिनट वक्त हो जाए तो तुम्हें रोकना है, ठीक है? हेलो, अब जमशेद रजा के मुझसे बात करो ना। नूर अहमद, नूर अहमद, अरे बोलो यार। जब 2 मिनट हो जाए तो अपनी देखिए, मैंने कहा कि भारत पर एतराज है, तो ये जनाब ये नहीं बोलने देगा, इसकी बौखलाहट तारी हो गई। यहाँ वहाँ की बात कर रहे हैं। घबराओ ना, घबराने की जरूरत नहीं है। भारत पर एतराज है तो हिफ्जुल ईमान की इबादत पढ़ते और उस पर एतराज करते, कहाँ चले गए, फला बस्तुल बना। चलो एक काम करो, सुनो नूर अहमद, ओ नूर अहमद, इन्होंने अभी ओ नूर अहमद, एक भी एतराज, नूर अहमद इसकी जहालत देख करके चुल्लू में छुप गया जाकर के पल्लू में। बोलो मत यार, मैं बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहे हो तुम? नहीं, एक मिनट चुप रहो। नूर अहमद, मेरे टाइम पे क्यों बोल रहे हो? नूर अहमद, अरे यार, जब तुम लोग में बात हो रही है, एतराज तुमने रख दिया, अब हकम को बीच में लाने की क्या जरूरत है? हकम को टाइम देखना है, टाइम देखो। तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। 2 मिनट हो गए, तुमने कुछ बोला? मेरे 2 मिनट हो गए थे। तो जब टाइम होगा जब तो बोलेंगे भी। मेरे 2 मिनट हो। एक मिनट मुझे बोलने ही नहीं देते आप। चलो रजा भाई, डर रहे हो। चलो इनका 2 मिनट यहाँ से शुरू होता है, चलो चालू करो। 4 बज रहे हैं, 4:02 में इनका वक्त खत्म होगा। चलो चलिए जनाब, ये देखो, जमशेद रजा कादरी साहब ने अभी तक किसी भी इबारत पर एतराज नहीं किया, खाली हिफ्जुल ईमान का नाम लिया है। इनको तो चाहिए था कि हिफ्जुल ईमान पर जो इबारत पर एतराज है वो इबारत पूरी पढ़ते और उस पर अपना एतराज बताते, और ना इधर उधर की बात पर जाते। ठीक है, इधर उधर की बात कर रहे हैं। देखो अब इन्होंने कहा कि ऐसे बीच बीच में हंसना ये अल्लाह के हदीस में मुनाफिकत की निशानी है। तो पहली बात तो ये अल्लाह के रसूल पर इन्होंने झूठ बोला और ये अपने ही फतवे से मुनाफिक बन गए जनाब, यही कर रहे हैं। तो ये हाल है इनका। इन्होंने अभी एक भी एतराज पेश नहीं किया है, ना हिफ्जुल ईमान की इबारत को पेश किया है, हमारे व्हाट्सएप पे नहीं भेजा है, जबकि इन्होंने उसूल बनाया था कि जो भी इबारत पर एतराज होगा वो व्हाट्सएप पे भेजेगा और किताब का नाम लानतुल्लाह अलल काज़िमीन, लानतुल्लाह अलल काज़िमीन, क्या एतराज होगा वो भेजा जाएगा। तो इन्होंने शुरू में उसूल बना लिया, लानतुल्लाह अलल काज़िमीन। तो ये देखो, मेरे टाइम पे ये बार बार बोल रहे हैं। इन्होंने कहा था उसूल में कि जो किसी के बीच में बोलेगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी। तो जनाब अपने ही वसूल से अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है, तो ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इनके वसूल से इनको शिकस्त हो गई है। ठीक है, तो जनाब के पास अभी भी डर लगा हुआ है कि ये अभी तक उस इबारत को पेश नहीं कर पाए जिस पर इनको इतराज है। इस जनाब को उस इबारत पे बात कर ही नहीं रहे, इधर उधर की बात कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले अल्लाह की बेशुमार लानत हो झूठों पर। आमीन बोलना भाईजान जरा। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मैंने शुरू में ये उसूल बनाया था कि जिस किताब को आप रखेंगे उसका सफ़ा नंबर बताएंगे और किताब बताएंगे, क्योंकि जब बात होती है तो ऑनलाइन में किताबें ट्रांसफर नहीं हो पाती है नेटवर्क की वजह से। पहली चीज।
इसने झूठ बोला। और दूसरी चीज ने ये बोला कि इबारत पढ़ के नहीं सुना। भाई जान मैंने कितनी बार इबारत पढ़ा? 2 बार, 2 बार इबारत पढ़ा मैंने, ठीक है। दूसरा झूठ। चलो नूर अहमद भाई बोल रहे हैं, नूर अहमद भाई। हाँ तीसरी चीज ये है कि इन्होंने कहा कि अभी तक इन्होंने अपना एतराज खुल के नहीं रखा। मैंने शुरू में एतराज खुल के रख दिया, मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। और हिफ्जुल ईमान सफ़ा नंबर 15, किताब का नाम भी बताया, सफ़ा नंबर भी बताया, और ये भी बताया कि अगर हवाला गलत साबित हो या मैं गलत हवाला पेश करूं तो अल्लाह की मुझ पर लानत हो। आमीन भी बोला था मैंने, बोला था कि नहीं बोला था? बेशक बेशक। बेशक। अब ये तीनों चीजों में झूठा साबित हुआ। अब मैं फिर इससे एतराज कर रहा हूँ, हिफ्जुल ईमान की इबारत कुफरिया इबारत है। सफ़ा नंबर 15 हिफ्जुल ईमान इबारत ये है कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना बकौले ज़ैद दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि इस गैब से मुराद। खामोश हो जा, बीच में बोल गया ये 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 इसकी शिकस्त हो गई, शिकस्त हो गई इसकी। इसने कबूल कर लिया था पहले। चलिए इबारत, चलिए चलिए सुनिए सुनिए सुनिए। ज़ैद ने सवाल किया, ज़ैद ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है, तो इसका जवाब सुनिए। जवाब देता है, झूठ बोला। देखो इबारत से फिर बीच में बोल गया, फिर बीच में बोल गया, फिर बीच में बोल गया, फिर बीच में बोल गया ये इबारत सही है, बीच में नहीं बोलना। अगर मैं हवाला गलत पढ़ूं तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर, नहीं तो तुझ पर आमीन बोल। आमीन। अब खामोश हो जा, अब खामोश हो जा। ज़ैद ने बोलना है। ज़ैद ने सवाल किया, ज़ैद ने सवाल किया कि क्या अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब हैं या नहीं? फिर झूठ बोला ये। अस्तगफिरुल्लाह, फिर तूने बीच में बोला अल्लाह की लानत फिर तुमने झूठ बोला। अच्छा एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। ज़ैद ने सवाल क्या किया वो बता। वो इबारत पूरी अच्छे से पढ़। हाँ इबारत पढ़ रहा हूँ बिल। हाँ अब खामोश हो जा, मैं पूरी इबारत पढ़ रहा हूँ जहाँ से ज़ैद ने सवाल किया। अब सवाल सुन। सवाल ये है, इल्मे गैब की 2 किस्में हैं, बिज़ात इस माना कर आलिमुल गैब। आलिमुल गैब खुदा ताला के सिवा कोई नहीं हो सकता। आलिमुल गैब खुदा ताला के सिवा कोई नहीं हो सकता। और बावास्ते इस माना कर रसूलुल्लाह आलिमुल गैब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है। ज़ैद का ये इस्तिदलाल व अमल कैसा है? अब ये हुआ ज़ैद का सवाल। अब जवाब सुन, बीच में बोलना मत, 2 मिनट मेरा खामोशी से सुन। फिर ये कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अमर बल्कि हर सबियो मजनून बल्कि जमियो हैवानात बाहिम के लिए भी हासिल है, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी है। तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए। मतलब तेरा बाप, तेरा नाजायज बाप जो अशरफ अली थानवी है, वो ये कह रहा है कि हर शख्स को कुछ ना कुछ इल्म गैब होता है। तो अल्लाह के रसूल के इल्म गैब को हर शख्स से जोड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर गैब की तो बात ही नहीं है। ज़ैद ने सवाल किया आलिमुल गैब का, और तेरा बाप जो सवाल का जवाब दे रहा है इल्म गैब का। मतलब ऐसा हो गया कि सवाल करो कंदुम और तुम जवाब दो जो, है ना, ये बात हो गई। तो अब आलिमुल गैब का सवाल ज़ैद ने किया और तेरे बाप ने इल्म गैब का जवाब दिया, और इल्म गैब में हुजूर का जैसा इल्म गैब है ऐसा जानवर, पागल, मजनू तस्वीर दे करके ये शान में गुस्ताखी करके काफिर हुआ या नहीं हुआ? इसका जवाब मुझे दे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर तू इल्म गैब की और आलिमुल गैब की बात ही मत करना। तू सिर्फ इतना बता कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल का इल्म सबसे बढ़कर है और सबसे आला है। तो उस इल्म को कोई जानवर से, जैसे मैं तेरे बाप अशरफ अली थानवी को बोलूँ कि तेरा अशरफ अली थान बाप जो है वो आलिम है, तो उसमें उसी की क्या खासियत है? ऐसा आलिम तो जो इल्म उसको है वैसा इल्म तो खंजीर कुत्ते बिल्ली को भी है। तो इसमें तेरे अशरफ अली थानवी की गुस्ताखी हुई या नहीं हुई? तो अब आलिमुल गैब का और इल्म गैब का यहाँ पे बहस ही नहीं है, यहाँ बहस है हुजूर के इल्म गैब को जानवर पागल से तस्वीर दी। अब तू बोल।
सवाल भी गलत पढ़ रहा है, जवाब भी गलत पढ़ रहा है। देखिए सामने ग्राम, ये है देवबंदियों की हालत, सवाल भी गलत पढ़ रहा है, ये है देवबंदियों की हालत। किताब नहीं है सामने ग्राम, ये है देवबंदियों की हालत। जवाब भी गलत है। मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, सवाल सही मसलक के आला हजरत जिंदाबाद। नूर अहमद के मुंह पे काली पोत दिया उसके मुनाजिर ने। नूर अहमद के मुंह पे काली पोत दिया उसके मुनाजिर ने। अगर ये सवाल गलत हुआ तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर, नहीं तो तुझ पर। नूर अहमद के मुंह पे उसके मुनाजिर ने काली पोत दी। नूर अहमद कहाँ भाग गया? इबारत अगर इबारत मैंने गलत पढ़ी तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर, नहीं तो तुझ पर और तेरे इस मुनाजिर पर। आमीन। सब जाहिल होते ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, नूर अहमद, भारत नहीं सही पढ़ पा रहे नूर अहमद, ये देखो, ये देखो, ये देखो, भारत पढ़ना नहीं आता। दिल पर सुनो, सुनो, जोड़े दे रहा है। सुनो, 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 एक काम करो भाईजान, सुनो, रजा भाई, रजा भाई, हाँ जी 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 जी, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये इबारत पढ़ के सुनाए। चल बे सुना। चलो नूर अहमद, अगर इसने इबारत पढ़ के सुना दी, सुनो, 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 अगर रजा भाई इसने इबारत पढ़ के सुना दी और वही चीज नहीं पढ़ी जो मैंने कहा था तो मेरी शिकस्त हो जाएगी। इसको बोलो पढ़ के सुनाए। चलो नूर अहमद, पढ़ने दे, नूर अहमद देवबंदी अब इनसे को इबारत पढ़ करके सुनाया। फिर पढ़ इबारत पढ़, ये तूने इबारत पढ़, इबारत पढ़, 2 मिनट देता हूँ। इबारत पढ़वाइए। गलत पढ़ा है तो इबारत नहीं पढ़। अल्लाह की लानत हो जिसने इबारत गलत पढ़ा है। आमीन आमीन। चल अब तू इबारत चलो पढ़, तुम पढ़ दो। अब इबारत पढ़, इबारत पढ़, इबारत पढ़, इबारत पढ़, नूर अहमद, इबारत पढ़। चल सवाल इबारत पढ़, तू इबारत पढ़। नूर अहमद, ये काम अबे नूर अहमद बोल क्यों नहीं रहा है? हाँ तो मेहताब भाई इनसे बोलो कि अब ये इबारत पढ़ के सुनाए, ये कभी नहीं सुनाएंगे। इनको पता है कि मैंने इबारत बिल्कुल ठीक पढ़ी है और इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं है। इन्होंने लानत भी भेज दी है। हेलो मेहताब भाई, बोलिए इनको, नूर भाई, नूर अहमद को बोलो। नूर अहमद, हेलो, नूर अहमद देवबंदी, फोन काट दिया क्या? हाँ शायद करके भाग गया। हाँ तो एक काम करो, इसके पर्सनल में इबारत मंगवाओ, इससे इबारत मंगवाओ, फिर मैं इसको फोन पे बात करूंगा इससे। देखिए सामने निकराम, मैंने जो इबारत पढ़ी हिफ्जुल ईमान की पूरी बिल्कुल दुरुस्त पढ़ी है, सवाल से लेके जवाब तक, और ये सिर्फ लबबाजी करके भाग गया क्योंकि इनकी औकात नहीं है इसका दिफा करने की। अब ये भाग गया, इसने बोला कि तूने सवाल और जवाब दोनों गलत पढ़ा है, तो मैं इससे मुतालबा कर रहा था, ये देखिए फोन काट के भाग गए। तो ये है इन लोगों की हालत। तो मेहताब रजा, इससे बोलिए पर्सनल में इससे स्कैन मांगिए और स्कैन मुझे रिसाल करिए, ठीक है? इसको छोड़िएगा मत, इसको पकड़ के जमीन में गाड़ दीजिए इसको, ठीक है? इंशाअल्लाह। चलिए ठीक है, रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।